channel Study for Social Science. So today we are going to learn about the third part of the chapter of longitude and latitude, which belongs to the standard 6 of standard 6 according to NCERT. So previously we have discussed about the latitudes and the different zones of the earth, different heat zones of the earth. Now today we are going to discuss about the longitude. So according to the chapter name, there are we are going to discuss about the latitudes. Latitude has been done previously. I hope that you understand it well. Now we are going to discuss about the longitudes. Look at the picture at the left of the screen. So this is the picture of earth, and you can see some imaginary lines which goes through from north pole to south pole. Okay, so these are the longitudes. Now to fix a position of a place, it is necessary to know something more than latitude of that place. सिर्फ लैटिट्यूड जानने से हमको प्लेस का एक्यूरेट लोकेशन मालूम नहीं चलता है. सो लैटिट्यूड इसलिए क्या है कि हम लोगों को लॉन्गिट्यूड का भी सहारा लेना पड़ता है. So for the example, Tonga Island, that is in the Pacific Ocean, and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude. They both are situated on the same latitude. मतलब कि पैसिफिक ओशन का जो एक आइलैंड है जिसका नाम है टोंगा, एंड इंडियन ओशन का जो एक आइलैंड है जिसका नाम है मॉरिशस, वो सेम लैटिट्यूड पे है. नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole. So ये कहाँ पे है? 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे ये प्लेस कहाँ पे है, कितना ईस्ट में है, कितना वेस्ट में है, ये भी हमको जानना ज़रूरी है. सो इसीलिए हम लोग लॉन्गिट्यूड का भी सहारा लेते हैं. So longitudes, lines of references are called meridians of longitude. So जो हम जो longitudes का हम जो reference लेते हैं उसमें से जो main longitude है जो उसको हम कहते हैं meridian of the longitudes. Like equator, the main line of the latitude which is equator 0 degree. So इसका longitude का भी एक main longitude है जिसे हम कहते हैं कि meridians of latitude of longitude, sorry. So इसका भी जो डिग्री है वो है 0 डिग्री. From look at द पिक्चर ऑफ द ग्लोब, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक इमेजिनरी लाइन जो विच गोज थ्रू फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इट इज़ इंडिकेटेड एज 0 डिग्री. सो इट इज़ द मेरिडियन ऑफ longitude. Now, and the distances between them are measured in degrees of longitude. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. एक एक डिग्री जो हम जब पार करते जाते हैं तो टाइम का मिनट से सेकंड, सेकंड से मिनट से सेकंड एंड सेकंड से मिनट, इस तरह से वो डिवाइड हो जाता है. There are some semicircles of the distance between them decreases steadily polewards until it becomes 0 at poles where all the meridians meet. Look at this picture very carefully. आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पिक्चर है, हर एक लाइन, हर एक मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड शुरू होता है नॉर्थ पोल से और जाता है साउथ पोल में. ठीक है, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल and meets in the south pole, or you may say it starts from the south pole and meets at the north pole. So longitudes का जो सारे longitude सब north pole और south pole में ही ये लोग जाके मिलते हैं. ठीक है. Unlike the parallels of latitudes का जो पैरेलल होता है, all meridians are of equal length. वहाँ पे जो meridians है लैटिट्यूड में क्या है, पैरेलल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन all meridian जो all that means all longitudes are of equal length. Thus it was difficult to number the meridians. Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through the Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. So क्या है कि हर जो मेरिडियन होता है इस मेरिडियंस इक्वल नहीं होते हैं लॉन्गिट्यूड्स की लैटिट्यूड्स की तरह. सो क्या होता है, मेरिडियंस का जो नंबर है वो हमें गिनना बहुत परेशानी में डाल देता है. इसीलिए क्या कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि ग्रीनविच ब्रिटेन
कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी के ऊपर से जो लॉन्गिट्यूड गया है उसे मान लिया गया है प्राइम मेरिडियन. लाइक इक्वेटर इज, यू मे से, द प्राइम लैटिट्यूड. सो प्राइम मेरिडियन, you can say it is the prime longitude. Its value is 0 degree. I have shown you in the figure, in the diagram, that which is the 0 degree longitude. And from it we count 180 eastward as well as 180 degree westward. Okay, look, it is the 0 degree. इट इज़ द 0 डिग्री और प्राइम मेरिडियन. आप यहाँ पे देखिए, यह पे जाता है, इसके बाद वेस्ट की तरफ जो जाता है 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 120 डिग्री वेस्ट, 150 डिग्री वेस्ट, एंड एट लास्ट 180 डिग्री वेस्ट. इसकी तरफ भी जाता है 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, एंड 150, एंड एट लास्ट 180 डिग्री पे जाके वो मिलता है. ठीक है. सो the prime meridian and 100 degree meridian divided the earth into two equal halves. जैसे कि लैटिट्यूड जो इक्वेटर है वो भी अर्थ को दो हिस्से में डिवाइड करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ये प्राइम मेरिडियन भी अर्थ को दो हिस्से में ही डिवाइड करता है. वन इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अनदर इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लुक एट द एरो, दिस इज द प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन के इस तरफ जो है, प्राइम मेरिडियन के इस तरफ का जो इलाका है ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर. इस तरफ का इलाका है वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. सो इस तरफ में जो लॉन्गिट्यूड्स जाते हैं उसे हम लाइक 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट ऐसे बोलते हैं. और जो यहाँ पे ईस्ट की तरफ जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उसे हम 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट इस तरह से बोलते हैं. Okay, now look at the grid of parallels of the latitudes and meridian. Grid of the parallels of the latitudes of meridian you can see here in figure number 2.6. Okay, so you can locate any point on the globe very easily if you know its latitude or longitude. Suppose क्या है, आपको एक जगह का longitude और latitude पता है. Suppose, ठीक है. So आपको पता है कि वो इस जगह पे है. सपोज ये है लाइक धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. सो हमको यहाँ पे ईस्ट लॉन्गिट्यूड ढूंढना पड़ेगा. 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहाँ पे है? सपोज दिस इज द 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, दिस इज ओके. एंड लैटिट्यूड, सपोज दिस इज द 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. सो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पे इसी बीच में, इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में ही धुबरी का आसाम, जो धुबरी जो आसाम का एक इलाका है वो लोकेटेड है. ठीक है. सो we cannot locate easily only with the help of latitude or longitude, so we have to take the help of both latitude and longitude to locate any place. ठीक है. Now, to understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines in a paper. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक डायग्राम है जो पेपर में दिखाया हुआ है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको? लेबल द वर्टिकल रोज विद द नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद द लेटर्स. वर्टिकल रोज जो है, ये जो है वर्टिकल रोज, ये नंबर पे दिखाई दे रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल है ये लेटर पे मार्क किया गया है. Now draw some small circles randomly on points where the horizontal and vertical lines intersect each other. यहाँ पे जो ये आपको सर्कल जो दिखाई दे रहे हैं, रेड स्मॉल सर्कल जो है, ये पे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वर्टिकल लाइंस एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है. सो नेम दिस सर्कल एज ए बी सी डी एंड ई. अब इसको नाम अगर दीजिएगा ए बी, ठीक है, सी डी, और इस तरह से स्मॉल लेटर में स्मॉल लेटर ए, स्मॉल लेटर बी, स्मॉल लेटर सी. नाउ यू विल सी दैट सर्कल, स्मॉल लेटर सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. ये है लैटिट्यूड. आपको पता ही है लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टली जाता है, लॉन्गिट्यूड वर्टिकली आता है. सो अगर आप नंबर 1 लाइन वर्टिकल लाइन को लॉन्गिट्यूड पकड़ेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को लैटिट्यूड पकड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए कहाँ पे है, बी नॉर्थ एंड 1 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पे. ठीक है. सो नाउ यू विल सी दैट सो इस तरह से आप बाकी इन जगहों का भी पता कर सकते हैं. सो नाउ लुक एट दिस मैप वेरी केयरफुली.
what is there in this map? So you can see here there are some some vertical lines. Okay, so ये है हमारा टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड। तो लॉन्गिट्यूड हमारा टाइम जोन बनाने में भी मदद करता है। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ पे जो आपको कार्व्ड लाइन दिखाई दे रहा है, इसके दोनों तरफ अलग तरह से दिन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे माइनस पे चल रहा है, देखिए -11, -10, -12, -13 मीन्स इट इज़ दैट अब फिर यहाँ पे डिवाइड हो गया। मतलब यहाँ पे जो इंटरनेशनल डेट लाइन के एक तरफ की कंट्रीज़ में और जगह पे जो टाइम होगा, दूसरी तरफ उनसे बिल्कुल अलग टाइम होगा। सो आई होप दैट आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नाउ फॉर दिस सेशन, फॉर टुडे दिस इज़ एनफ। रीड दिस वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, and on tomorrow we will come with the next part of the chapter, and that is the longitude and time। मतलब longitude और time के बीच में क्या रिश्ता है वो हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। थैंक यू।